Assalamu alaikum, welcome to Biological Hub. Today we will discuss about the master gland of endocrine system, which is called the pituitary gland. Pituitary gland, which control the activities of our major endocrine gland with the help of their secretion, which is called hormones. So let's start our video. Pituitary gland, what is actually the pituitary gland? Pituitary gland is located just below the hypothalamus. It actually connected with the hypothalamus, which is the most important part of the brain, which control the different activities of human body, animal body. It connected with the hypothalamus with the help of a stalk called infundibulum. एक डंडी के जरिए उसके साथ कनेक्शन होता है इसका, which is called infundibulum. Pituitary gland is actually divided into three major loops or three major pituitaries: interior loop, interior pituitary; posterior loop, posterior pituitary; and median loop, median pituitary. So let's start first of all interior pituitary. Interior pituitary is called the master gland of the endocrine system. It secretes the numerous hormone. Many of them regulate the activity of other endocrine gland. It secretes the 6 different hormones. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजता है, मैसेज भेजता है टूवर्ड्स द इंटीरियर पिट्यूटरी. इंटीरियर पिट्यूटरी प्रोड्यूस 6 हार्मोन्स. हर हार्मोन का एक स्पेसिफिक काम है, वो डिफरेंट ग्लैंड्स के ऊपर जाके वर्कआउट करते हैं, वहाँ जाते हैं, उनकी सेक्रीशन प्रोड्यूस कराते हैं, फिर उन ग्लैंड की सेक्रीशन दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड की सेक्रीशन को कंट्रोल करती हैं. सो इंटीरियर पिट्यूटरी एक्चुअली प्रोड्यूस द 3 हार्मोन्स: ग्रोथ हार्मोन and adenocorticotropic hormone, thyroid stimulating hormone, gonadotrophic hormone. gonadotrophic hormone में 2 हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, FSH and LH. FSH is actually the follicle stimulating hormone and LH is luteinizing hormone, and prolactin, which is the mammary gland, produced within the mammary gland. So interior pituitary, I already tell you, it produces the 6 different kind of hormones. First of all, growth hormone. Okay, growth hormone actually produced under the influence of hypothalamic message in the form of growth hormone releasing factor, which are come from the hypothalamus. hypothalamus एक मैसेज भेजता है, एक सिग्नल भेजता है, जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर. वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर, उसका काम क्या है? वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन कराता है. इफ़ द डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन डायवॉर्फिज्म, इसकी वजह से डायवॉर्फिज्म हो जाता है, जो इंडिविजुअल होता है हैविंग अ शॉर्टर स्टैचू, उनकी हाइट कम होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट स्लो होती है, और एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन IQ लेवल समटाइम अनअफेक्टेड होता है, लेकिन अफेक्ट भी हो सकता है अगर ब्रेन का साइज़ बहुत छोटा हो जाए. अच्छा, अगर ओवर सेक्रीशन हो जाए, इफ़ देर इज़ ओवर सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सो व्हाट विल हैपन? देर इज़ अ डिजीज़ विच इज़ कॉल्ड जाइगेंटिज्म, which is the disease in which the humans and the children having the higher height, having the more height, increase in height abnormally as compared to the other persons. Their over secretion result in enlargement of feet, hands, skull, nose and jawbone, and their length is more as compared to the normal person. Okay, next is thyroid stimulating hormone. It is also produced under the influence of secretion or masses which are come from the thalamus in the form of thyrotrophin releasing factor, TRF, which are produced by the hypothalamus, stimulate the synthesis and release of thyroid stimulating hormone, TSH. If if there is a over secretion of thyroid stimulating hormone called hyperthyroidism. hyperthyroidism का क्या मतलब है? excess of thyroxine which are produced the thyroid gland, and under secretion causes the hypothyroidism, लैक ऑफ थायरॉक्सिन, और उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड जो है उसका साइज इंक्रीज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. देयर आर द डिफरेंट डिजीजेस काज एंड एबनॉर्मेलिटीज काज विद इन द थायराइड ग्लैंड. नेक्स्ट इज ACTH, which is called adrenocorticotropic hormone. It is also secreted under the secretion or under the message of hypothalamus in the form of
corticotrophin releasing factor CRF from the hypothalamus actually which control by the steroid level in the blood. steroid level ज़्यादा होगा कम होगा वो अफेक्ट करेगा corticotrophin releasing factor को which are come from the hypothalamus. उसका काम क्या है? ACTH बनाना, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की प्रोडक्शन करवाना. अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस. अगर के इसकी वजह से क्या होता है कि स्टीरॉइड लेवल ज़्यादा हो जाए तो देयर इज़ अ स्ट्रेस लेवल इंक्रीज ऑन द हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है, कोल्ड बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, हीट गर्मी होती है, पेन होती है बहुत ज़्यादा, और इन्फेक्शन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है. ठीक है. और ACTH जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर, जो कि किडनी का पार्ट है. एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला आपको पता है. एड्रीनल कॉर्टेक्स और फिर उसके रिजल्ट में एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो सेक्रीट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब कॉर्टिसोन और एड्रीनल सोन. ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करता है एज अ रिजल्ट ऑफ ACTH. नेक्स्ट इज गोनेडोट्रॉफिक, जिसमें दो तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, दो तरह की सेक्रीशन प्रोड्यूस होती हैं, FSH और LH. गोनेडोट्रॉफिन है ये गोनेड्स के हमारे हार्मोन्स हैं, ये हमारे सेक्सुअल पार्ट के ऊपर अफेक्ट करते हैं फीमेल्स और मेल्स में. फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन LH, इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इसको कहा जाता है. ठीक है. अब इन दोनों का काम क्या है? इन दोनों का काम ये है कि ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इनका अफेक्ट है. FSH और LH ओवरीज के ऊपर अफेक्ट करते हैं एज वेल एज द मेल टेस्टीज के ऊपर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग रोल है इन द मैचुरेशन ऑफ इंडिविजुअल, जब वो मेच्योर हो रहे होते हैं, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ बर्थ. इनका ओवरीज के ऊपर इनकी सेक्रीशन है जिसके रिजल्ट में बर्थ प्रोसेस अक्कर होता है. नेक्स्ट इज प्रोलैक्टिन. प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क प्रोडक्शन विद इन द फीमेल्स. देयर मेमरी ग्लैंड, उनके मेमरी ग्लैंड्स में मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं प्रोलैक्टिन. So these are the 6 hormones of interior pituitary. Next is posterior pituitary, which actually not produce any hormones. It actually store the hormones. 2 type of hormones, antidiuretic hormones, and which are called ADH, and other is oxytocin. And the first of all median loop क्या है? Not prominent in all the individuals. There is a thin layer between the interior pituitary और posterior के दरमियान में एक thin membrane है, एक thin layer है. ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस मैसेज के प्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम है मेलानोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इनका रोल क्या है? ये ना ज़्यादातर प्रेगनेंसी में इनका सेक्रीशन होती है, इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. और इसका काम क्या है? ये रिलीज़ करते हैं मिलानिन, जो कि मिलानोसिस्ट प्रोड्यूस करते हैं विद इन द स्किन एंड हेयर. इसकी वजह से स्किन का कलर डार्क होता है और पिगमेंटेशन होती है बॉडी के अंदर. ज़्यादातर ये प्रेग्नेंट वूमेंस में ये प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज़ मैंने अभी आपको बताया हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो 2 तरह के हार्मोन स्टोर करती है, नॉट प्रोड्यूस द हार्मोन, ऑक्सीटॉक्सिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन. इसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन भी है. अब क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ये है क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको जो है वो क्या करती है? इसको स्टोर करती है. और ये जो हार्मोन्स होते हैं रिलीज इन द रिस्पॉन्स ऑफ नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस. अब नर्व इम्पल्सिस मैसेज भेजेंगी हाइपोथैलेमस से. कहाँ आएगा? वो हाइपोथैलेमस में ये सेक्रीशंस नर्व्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगी. और ये सेक्रीशंस कहाँ आके स्टोर होंगी? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में या पोस्टीरियर लूब में. इसके रिजल्ट में ADH जब प्रोड्यूस होता है डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, लो ब्लड प्रेशर होता है इसकी. लेकिन अंडर सेक्रीशन इसकी क्या काज करती है? एक डिजीज़ काज करती है विच इज़ द मोस्ट फेमस एंड कॉमन डिजीज़ डायबिटीज़ इंसिपिडियस. इंसिपिडियस में इसका क्या होता है? एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ डाइल्यूटेड यूरेन होता है एंड फ्रीक्वेंट थ्रस्ट. बहुत ज़्यादा आपको प्यास भी लगती है. ऑफकोर्स बॉडी से यूरेन जो है वो रिलीज़ हो रहा है तो आपको फ्रीक्वेंट थ्रस्ट महसूस होगी. इसकी ओवर सेक्रीशन जो है
उसकी वजह से क्या होता है, किडनी प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑक्सीटॉक्सिन विच इज़ द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन। इसका क्या काम है, इसका काम है इट इज़ इन्वॉल्व इन एक्चुअली द प्रेगनेंसी, जब बच्चे की बर्थ हो रही होती है। सो ऑक्सीटॉक्सिन इज प्रोड्यूस विद इन द यूट्रस विच इज़ इन्वॉल्व इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूट्रस, जिसके रिजल्ट में बेबी की बर्थ होती है। विद देन आफ्टर दिस बेबी कम फ्रॉम द सर्फिक्स ऑफ द फीमेल एंड बेबी बर्थ होती है। लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन इज आल्सो नॉट प्रोड्यूस बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी बट इट इज स्टोर विद इन द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब इसकी ओवर सेक्रीशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यूट्राइन की जो वॉल है, यूट्रस की जो वॉल है, उसकी रैप्चरिंग होना शुरू हो जाती है, वो ब्रेक डाउन लाइसिस स्टार्ट हो जाती है। किसकी वॉल की, यूट्रस की वॉल की। लेकिन इसकी अंडर सेक्रीशन में क्या होता है, ऑक्सीटॉक्सिन जो है इनहिबिट करता है लेबर प्रोसेस को। उसकी वजह से ऑफकोर्स कि जो यूट्रस है वो ना कॉन्ट्रैक्ट होगी ना रिलैक्स होगी, तो बेबी की जो है वो डिलीवरी नहीं हो सकती, नॉर्मल फीमेल की डिलीवरी नहीं हो सकती, तो सिजेरियन की तरफ स्विच आउट करना पड़ता है। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ऑक्सीटॉक्सिन का। ऑक्सीटॉक्सिन इज इन्वॉल्व इन इजेक्शन ऑफ मिल्क, नॉट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज प्रोड्यूस बाय द प्रोलैक्टिन प्रोड्यूस करता है मिल्क को, बट ऑक्सीटॉक्सिन इजेक्ट कराता है, पहुंचाता है मिल्क को टू द मैमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल। आफ्टर दिस द बेबी फीड द मिल्क। सो दिस इज ऑल अबाउट द posterior pituitary. Thank you so much for watching my video. Please like and subscribe for more videos. Okay जी, अल्लाह हाफिज़.